Okay. We will find the marginal cost, the derivative of total cost, derivative of TC with respect to Q. This is constant. The derivative of the constant is 0, and the derivative of 3Q, 3, and the derivative of Q is 1. So 0 plus 3 into 1. So dmc is equal to 3. This is the answer. mc is equal to 3. Write down the equation for TC. Calculate the value of TC when Q is 20. वो हो गया. Write down the equation for MC. तो ये B part था. Equation of MC. Calculate the value of MC when Q is 20. So this is irrespective of Q. इसमें Q है ही नहीं. ये 20 हो, 30 हो, 40 हो. It will remain constant. The marginal cost will remain 33. It is independent of Q. It does not depend upon Q. Whatever be the value of Q, it will remain 3. वो कह रहा है find the value of MC when Q is 20, but it is independent of Q. Q इसमें है ही नहीं. Q कुछ भी हो, it will remain constant. It is 3. It will remain constant, that is 3. So it is independent of Q. Q इसमें नहीं है. Independent of Q है ये. It is independent of Q. So it will remain 3 whatever be the value of Q. It will remain 3 whatever be the value of Q. So 20 पर भी ये 3 ही होगा. So what is the value of MC when Q is 20? So that is 3. 20 पर हम लिख देंगे equal to 3. When Q is 20, it is 3. और Q कुछ भी हो, ये 3 ही रहेगा क्योंकि ये independent of Q है. Q पर ये depend ही नहीं कर रहा. Describe in words the meaning of MC for this function. तो ये मैंने बता दिया, ये describe कर दिया in words में. It is independent of Q. It will remain 3 whatever be the value of Q. It is not depending upon Q. Q 20 हो, 30 हो, 10 हो, 5 हो, 0 हो. It is always 3. Marginal cost will always be 3. तो ये इसमें दो चीजें बता दी. तो ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया. अब हम थोड़ा सा सिंपल फंक्शन जो है इंटीग्रेशन के भी पढ़ लेते हैं. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. दैट इज द कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. So now we'll do integration. Integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. It is converse of differentiation. Isha, Aisha. So integration is the reverse process of differentiation. Differentiation में हमने जनरल रूल जो था, differentiation of constant was 0. Differentiation of constant was 0. और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है. इंटीग्रेशन ऑफ 0
with respect to x will be constant. Differentiation of constant is 0 and the integration of 0 will be constant. उल्टा process. इसी तरह differentiation of x raised to power n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी और x की पावर n-1 एक पावर कम कर देते थे। तो डिफरेंशिएशन अगर इसका करें n(x raised to power n-1) का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, इसकी एक पावर ऐड कर देंगे, ये n(x raised to power n-1) था, जो भी पावर थी यहां उस पे एक प्लस कर देंगे और जो आंसर आएगा n-1 + 1 करने से उस पे ऐड कर डिवाइड कर देंगे। यहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ ऐड वो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n(x raised to power), ये 1 से 1 कैंसिल होगा, n बचा, डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया x raised to power n। तो सिंपल वर्ड्स में दो फार्मूले हैं, 0 होगा तो उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, और अगर x raised to power n होगा, n है तो उसका होगा पावर 1 ऐड करेंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ सिंपल फार्मूले में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 will be constant. See, integration of x raised to power n with respect to x will be x raised to power n plus 1 divided by n plus 1। एक पावर ऐड कर देंगे और जो पावर बनेगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। उदाहरण एमसीक्यू टाइप जट है ना, उदाहरण मिनट में करें एमसीक्यू आया ही ना चले। So this is the integration। 0 होगा तो उसका इंटीग्रेशन c होगा, x raised to power n होगा तो उसका इंटीग्रेशन x raised to power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1। और अगर कोई कांस्टेंट होगा हमारे पास ऑलरेडी तो k है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो kx हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 into k विल बी k, तो k का इंटीग्रेशन kx हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मेजर फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में और हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 हम करेंगे, सॉरी 8. एक्सरसाइज 8.1 हम करेंगे। इंटीग्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। This is page 401। Integrate the following: x plus x square plus x raised to power 3.5, x cube, sorry, x into x cube plus x raised to power 3.5। इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे हम इसको इंटीग्रेट, जो लिखेंगे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन, दिस इज द सिंपल पार्ट द इंटीग्रेशन, x plus x cube plus x raised to power 3.5 होल विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो x का इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 ऐड कर देंगे, पावर 1 थी तो ये 2 हो जाएगी, अपॉन 2 कर देंगे। ये पावर 3 थी, 1 ऐड करेंगे तो 4 अपॉन 4 कर देंगे। ये पावर 3.5 थी, इस पे 1 ऐड करेंगे तो 4.4, 4.5 अपॉन 4.5। और आखिर में c, क्योंकि इसके बाद 0 है
तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर दो। ये हमारे पास आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। वी एडेड 1 पावर divided by the same power, we added 1 power divided by the same power, we added 1 power divided by the same power and plus c. ये हमारे पास आंसर है। This is the answer. Question number 2. Integrate. वन मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, स्टेप ये छोड़ देता। इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी हम लिख देते हैं, ये हमने अपनी तरफ से लिखा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया। उसमें उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा था इंटीग्रेट द फॉलोइंग, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, डिस्क्रिप्शन की जगह इंटीग्रेशन लिख दिया और डीएक्स लिख दिया। इसको हम पावर में लाएंगे, पहले इसको पावर में लाएंगे। पावर में लाएंगे कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा और ये 1 अपॉन रेडिकल साइन 1/2 हो जाएगा। द पावर विल बी 1/2 ऑफ रेडिकल साइन। रेडिकल को हटा के पावर 1/2 कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट विल बिकम 1/x raised to power 5 whole raised to power 1/2. It will become 5/2 with respect to x. इस पावर को ऊपर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। x raised to power 5/2 ऊपर जाएगा -5/2 dx. Now we will integrate. We will add power 1. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। इंटीग्रेशन का क्या तरीका है? ये -5/2 पावर थी, उसमें +1 पावर ऐड कर दिया और उसी पावर से हमने डिवाइड कर दिया, जो नई पावर बनी -5/2 + 1, उसी पावर से उसको हमने डिवाइड कर दिया और प्लस सी एक कांस्टेंट आखिर में ऐड कर दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सी तो एज इट इज रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये x raised to power -5/2 + 1 -5/2 + 1 LCM 2 -5 + 2. This will become -3/2. This will become -3/2. So x raised to power -3/2 divided by -3/2, ये भी वही चीज है, और प्लस सी। -3/2 को ऊपर ले जाएंगे, इट विल बिकम -2/3। 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -3/2, और ये एज इट इज रहेगा x raised to power -3/2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। ये नीचे वाला 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और x raised to power -3/2 plus some constant. This is the answer. So in this question, first we converted the radical sign. In this question, first of all, this is the question. Integrate 1/√x raised to power 5 with respect to x. Integrate 1/√x raised to power 5 with respect to x. Under root will be converted power 1/2. Integral 1/x raised to power 5 whole raised to power 1/2 with respect to x dx. Up 5 whole raised to power 1/2, it will become x raised to power 5/2. इसको ऊपर ले जाएंगे, x raised to power -5/2 dx. अब ये हमारे पास सिस्टम का क्वेश्चन बन गया। इसको अब जैसे 1 प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। How to integrate? We will add 1 power and then we divide by the same power. What is the new power? -5/2 + 1. इसको जब सिंप्लीफाई, और प्लस सी आखिर में कांस्टेंट, जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी पावर के साथ हम यहाँ ये आखिर में कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ भी किया।
Now x is to power minus 5 over 2 plus 1 will become x is to power minus 3 over 2 divided by also minus 3 over 2 and plus c. Minus 3 over 2 will go upside, it will become minus 2 over 3. x is to power minus 3 over 2 plus c. ये minus 3 over 2 बन जाएगा, ये as it is रहेगी, ये 2 over 3 बन जाएगा, minus 3 over 2 था तो ऊपर जाएगा तो 2 over 3 minus 2 over 3, ये as it is रहेगी, जिसको हम चेंज नहीं करते. So this is the answer. That was question number 2. तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पावर एक ऐड करनी है और उतनी ही पावर से डिवाइड कर देना है. सर आपने क्या बताया था, हम 1 कब ऐड करते हैं? जी, हम 1 कब ऐड करते हैं सर पावर में? इंटीग्रेट जब कर रहे हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. x over under root x is to power 5. जब इंटीग्रेट करते हैं पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी नई पावर से डिवाइड कर देते हैं 1 ऐड करने के बाद जो है. क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट x अपॉन अंडर रूट x is to power 5. अंडर रूट x is to power 5 बना था x is to power 5 over 2. तो इसको हम पावर में लिख लें d विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट x अपॉन x is to power, ये 5 over 2 बना था, x is to power अंडर रूट x is to power 5 क्या बना था, 1 over अंडर रूट x is to power 5, 1 over x is to power 5 upon 2. इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि सिंप्लीफाई कर सके हम. इंटीग्रेशन तो हम नहीं करें, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ये x की पावर 1 था ऊपर, ये ऊपर जाएगा माइनस 5 over 2 हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस 5 over 2. जब जो हमने एक्सपोनेंट्स के रूल बताए थे, जब दो एक जैसे बेस वाले डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है, नीचे वाली माइनस हो जाती है पावर. अब ये हो जाएगा x is to power 1 minus 5 over 2. तो 1 minus 5 over 2, ये 1 minus 5 over 2 minus 3 over 2 बचेगा dx. ये 1 minus 5 over 2, ये भी 1 minus 5 over 2 है, तो ये minus 3 over 2 बचेगा. अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम. जब सिंप्लीफाई हमने कर लिया इसको तो इंटीग्रेट करेंगे. इट विल बिकम x is to power minus 3 over 2. इसमें पावर 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर से फिर डिवाइड कर देंगे और प्लस c कर देंगे. So it will become x is to power minus 3 over 2 plus 1 will be, यहां मैं करके बताता हूं, minus 3 over 2, LCM 2 आ जाएगा, minus 3 plus 2 will be minus 1 over 2. तो ये पावर हो जाएगी x is to power minus 3 over 2 plus 1 will be minus 1 over 2, और ये भी minus 1 over 2 से डिवाइड हो जाएगी, प्लस c. ये माइनस 1 over 2 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम माइनस 2 over 1, यानी माइनस 2. 1 over 2 2 over 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 over 1 विल बी माइनस 2 एंड x is to power minus 1 over 2 प्लस सम कांस्टेंट. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, माइनस 2 x is to power minus 1 over 2 प्लस c प्लस सम कांस्टेंट. That was question number 3. Question number 4. सर एक चीज बताइएगा इसमें, आपने x 5/2 किया है सर दूसरे स्टेप में, तो सर लेकिन स्क्वायर तो सर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है. कहाँ है स्क्वायर जो कैंसिल आउट होगा? कहाँ है स्क्वायर बेटा जो कैंसिल आउट होगा? सर आपने अंडर रूट जो उसका अंडर रूट स्क्वायर होता है क्या? नहीं सर, उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर यूज करते हैं.
तो उसको खत्म करने के लिए कोई हमारी इक्वेशन है जो हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ होता है, कोई दोनों तरफ है यहाँ चीजें? ठीक है सर, थैंक वो इक्वेशन में होता है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको कुछ करेंगे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर किस चीज से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन तो है नहीं जो दोनों तरफ करेंगे, ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस रूट x अपॉन x, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x dx कर देते हैं। जो भी वेरिएबल होगा, x है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, अगर q होता तो विद रिस्पेक्ट टू q कर देते, dq कर देते। अच्छा, अब इनको अलग अलग कर लेंगे, आसान कर लेंगे। x अपॉन x प्लस रूट x अपॉन x, दोनों को ब्रैकेट में किया और विद रिस्पेक्ट, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और ये रूट, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, रूट x का मतलब x रेज़ टू पावर 1/2, और नीचे x है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे, बाकी अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे। x रेज़ टू पावर 1/2 था, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 -1, ये हाफ है और ये फुल है 1 है, तो अब माइनस का हाफ बच जाएगा, माइनस का 1 है और पॉजिटिव का हाफ है, तो माइनस के 1 में से पॉजिटिव का हाफ माइनस होगा तो नेगेटिव का हाफ बच जाएगा dx। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इंटीग्रेट कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, और ये ऑलरेडी x है, इसकी पावर 1/-1/2 था, इसमें +1 कर देंगे पावर, इसमें पावर +1 कर देंगे, और नीचे भी इसी पावर से जो नई पावर बनी है उससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस c, तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये x है, ये एज इट इज रहा, और प्लस x रेज़ टू पावर, ये 1 है पॉजिटिव का और ये माइनस का हाफ है, तो 1 में से नेगेटिव का हाफ जाएगा तो पॉजिटिव का हाफ बच जाएगा, जैसे पॉजिटिव का हाफ -1 से गया था तो नेगेटिव का हाफ बच जाएगा, जो ज्यादा है 1 ज्यादा है, हाफ कम है, तो पॉजिटिव का कम था, नेगेटिव का ज्यादा था, तो नेगेटिव का हाफ बच गया। यहाँ नेगेटिव का हाफ है और प्लस का 1 है, तो प्लस के 1 में से नेगेटिव हाफ माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का हाफ बच जाएगा, इस तरह नीचे भी यही बचेगा, और प्लस c। अब ये 1/2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 1/2 ऊपर जाएगा 2/1, तो 2, और x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया, x प्लस 2x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c, x प्लस 2x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। दोबारा बता देता हूं, इंटीग्रेट x प्लस रूट x अपॉन x होल dx, सेपरेट कर लेंगे, x अपॉन x प्लस रूट x अपॉन x अपॉन x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, रूट x को क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन x है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 पावर ऊपर चली जाएगी, x रेज़ टू पावर 1/2 -1, तो ये पावर x रेज़ टू पावर -1/2 बची, और ये 1 तो अपनी जगह पर रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना है dx से, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू एक्स हो जाएगा, जैसे मैंने k कहा, k होगा कांस्टेंट, तो x से मल्टीप्लाई होकर kx हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स विल बी x हो जाएगा, और प्लस x रेज़ टू पावर -1/2 में +1 कर दिया, और यही -1/2 +1 से डिवाइड कर दिया,
और प्लस सी कर दिया हमने, कांस्टेंट आखिर में ऐड कर देते हैं। तो इसका x ये फिर -1/2 + 1 विल बी x टू पावर 1/2 और डिवाइडेड भी यही पावर नीचे आ जाएगी प्लस सी। अब ये पावर ऊपर चली, ये 1/2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, बाकी ये एज इट इज रहा x, और ये सिर्फ ऊपर जाएगा 2x टू पावर 1/2 और प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसामा खान, ये हमारे पास आंसर आ गया, x + 2 x टू पावर 1/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। बस ये रूल याद रखने हैं आपने कि अगर 0 है तो कांस्टेंट हो जाएगा सी, यानी हर एक के आखिर में आपने सी लगाना है, क्योंकि आखिरी टर्म 0 होते है नहीं, उसमें सी लगा देना है। और x टू पावर n होगा तो उसमें एक पावर ऐड करके उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। और k होगा सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, kx हो जाएगा। सो दिस इज द रूल। क्वेश्चन नंबर 5, 2x। सर जी बेटा। सर हमारे पेपर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन? आपके फिजिकल है बेटा, आपके सर सिटी कैंपस में है। नहीं, मेन कैंपस में है, उस पे जो कुछ सर लिखा शेड्यूल के है हिसाब से सिटी कैंपस है। सिटी कैंपस लिखा है, मेन कैंपस दिया हुआ है। मेन कैंपस लिखा है। मेरा जो ख्याल है, मैंने जो पढ़ा है शायद मेन कैंपस ही है। आप उसको अच्छी तरह पढ़ा करें। बिजनेस मैथमेटिक्स का मेन कैंपस दिया है, फाइनेंशियल का सिटी कैंपस दिया हुआ है। सही, तो मेन कैंपस में है आपका, आप उसको अच्छी तरह गौर से पढ़ लें। जो डेट शीट उन्होंने भेजी है, जो आपने मेरे साथ भी शेयर की है, मेरे पास तो अभी ऑफिशियल आई नहीं है, अभी तक मेरे पास कोई ऑफिशियल डेट शीट मैनेजमेंट की नहीं आई। कंप्यूटर साइंस की आ गई है, मैनेजमेंट साइंस की नहीं आई। लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ शेयर की है उसमें साफ साफ लिखा है मेन कैंपस फिजिकल और मेन कैंपस ऑन कैंपस होगा। मेन कैंपस सर ऑनलाइन वैसे पॉसिबल नहीं है? हो सकता है, जैसे आज हड़ताल है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो मुमकिन है वो ऑनलाइन कर दे। वैसे फिलहाल तो कुछ नहीं मैं कह सकता, मेरे पास तो अभी ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई ना बेटा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये तो आप लोगों ने जो शेयर किया ग्रुप में, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने ग्रुप में मेरे पास मार्कशीट डेट शीट शेयर की है, उस डेट शीट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑन कैंपस होगा, फिजिकल होगा और मेन कैंपस में होगा। उसमें तो यही है लिखा है। सर जो जी आपने कोर्स हमें कराया है सर, हम इसकी तैयारी करें ना, बस जो चीज आपने जैसे एक्सरसाइज वगैरह हाँ छुड़वा बिल्कुल, दी हैं ऑन कैंपस हमको हो या छोड़ ऑनलाइन हो बेटा, आपने तो दें। तैयारी यही करनी है ना, जो पढ़ाया है उसकी तैयारी करें आप। ऑन कैंपस हो या ऑनलाइन हो, वो तो आपको उससे क्या गरज है, जैसे भी हो कर ले। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ऑन कैंपस को मुश्किल नहीं होता, बल्कि उनको एक फटीक से जान छूट जाती है कि वो पीडीएफ नहीं बनाना पड़ता है, सब कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ये है कि उसमें टाइम फिर ज्यादा नहीं मिलता। और ऑन कैंपस में, ऑनलाइन में ये है कि उसमें टाइम ज्यादा मिल जाता है, 1 घंटा उसका, बाकी तो वही है। और उसमें फिर पीडीएफ भी बनाना है। ओके, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 2x, 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 ऐड करेंगे, पावर 2 हो जाएगी। 1 पावर है ऑलरेडी, उसमें 1 ऐड करेंगे, 2 हो जाएगी। इसी 1 प्लस 1 से इस पावर से डिवाइड भी करते हैं। और ये क्या है, 2 x टू पावर -1 है ये, तो 1/x हो तो उसका इंटीग्रेशन ln x होता है, याद रखें। यहाँ पे एक और फार्मूला लिख देता हूं, 1/x, इसका इंटीग्रेशन ln x, नेचुरल लॉग x,
और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। 1/x का ln x का डेरिवेटिव ln x का क्या होगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रल ln x होगा। तो 1/x का इंटीग्रल ln x होगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा। डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x। डेरिवेटिव ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x। तो ये ln x हो जाएगा 2, 1/x का डेरिवेटिव ln x हो जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2x² 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ये पावर जो है इस पर, ये अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर होती है लॉग में, तो ये ln x² हो जाएगा प्लस c। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x² प्लस ln x² प्लस c। यहाँ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे ln से, वो ऊपर पावर में चला जाता है, ऊपर पावर में चला जाता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ एक नया फार्मूले का पता चला 1/x होगा, तो उसका डेरिवेटिव उसको ऊपर ले जाके x⁻⁻1 और +1 कर नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं ये हो जाएगा 2x⁻⁻1, ऊपर ले जाऊं तो x⁻⁻1 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट में करूं क्या हो जाएगा 2x⁻⁻1 में +1 ऐड कर दूं, नीचे भी -1 में +1 ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x⁻0 अपॉन 0। तो ये अपॉन 0 नहीं होना चाहिए भाई, अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स में गलत है। किसी भी चीज को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड किया जा सकता है, बट वी कांट डिवाइड एनीथिंग बाय 0। तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, इसलिए हम इसको 0 नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर पावर -1 है तो 1/x कर देंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। इसमें वो रूल नहीं अप्लाई करेंगे पावर में 1 प्लस करके और डिवाइड कर देंगे, तो हर जगह एक ही रूल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर पावर 1 है नीचे x⁻1 है, तो उसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x होगा। x है या q है या कुछ भी है, उसका नेचुरल लॉग में हो जाएगा ln में। उसको हम वो रूल, वो n+1 वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये याद रखना है आप। और कोई नंबर अगर नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में चला जाता है। ये मैंने लॉग पढ़ाया था उस वक्त, सब तमाम रूल मैंने बता दिए थे कि कोई नंबर, ये इंटीग्रेशन का तो रूल अब आया, इंटीग्रेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर अगर कोई ln से लॉग से ln हो या लॉग हो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर ऊपर जाकर पावर बन जाता है, और अगर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लॉग के रूल। So that was question number 5. Question number 6. 2x plus, ये सॉरी ये तो 5 6 2x plus 1 over 2x, इसको इंटीग्रेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने लिखने की जगह हमने इसको सिंबल बना दिया। इंटीग्रेट 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, 1/x का ln x और प्लस c। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 आ गया, और 1/x जो है ln x हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² प्लस ln x⁻1/2।
और एक्स टू पावर 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। एक्स टू पावर 1/2 को हमने अंडर रूट एक्स लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो 2x का 2x² 2 पावर 1 ऐड की तो 2 हो जाएगी, पावर 2 से डिवाइड किया, ये 2 2 से कैंसिल, x² बच गया, 1/2 इंटू 1/x है, तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा प्लस 1/2 ln से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x की पावर बन जाएगी ln x टू पावर 1/2, x टू पावर 1/2 को हम अंडर रूट x भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x अंडर रूट x प्लस 3, x अंडर रूट x प्लस 3 x अंडर रूट x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x अंडर रूट x x टू पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 3, ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम फंक्शन है, सेम बेस है, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये x टू पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस 3 dx, और ये 1 प्लस 1/2 x टू पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें पावर 1 ऐड करनी पड़ेगी, 3/2 प्लस 1, इसी से पावर से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, 3/2 प्लस 1 और प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x कांस्टेंट इंटू x और प्लस c, फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, x टू पावर 3/2 प्लस 1 विल बी 5/2, 2 1s are 2, 3 प्लस 2 विल बी 5/2 और नीचे भी 5/2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस 3x प्लस c, 5/2 को ऊपर ले जाएंगे, ये 2/5 हो जाएगा, 5/2 को ऊपर ले जाएंगे 2/5 हो जाएगा, x टू पावर 5/2 प्लस 3x प्लस c, 2/5 x टू पावर 5/2 प्लस 3x प्लस c, और इसका तो दोबारा मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटीग्रेट x अंडर रूट x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, अंडर रूट x को हमने x टू पावर 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, तो x इंटू x टू पावर 1/2